اور اس بیٹھک میں 14 کے لگ بھگ کشمیری قائدین کو مدعو کیا گیا. اس نشست میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو گفتگو ہوئی وہ کشمیر کے مستقبل کے بارے میں ہوئی. یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ 3.5 گھنٹے کی وہ نشست تھی اور اس کا کوئی طے شدہ ایجنڈا نہ تھا. ایک اوپن فلو ڈسکشن تھی. سب کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا گیا اور سب نے اپنی گفتگو وہاں کی. یہ بھی میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں اور آپ کے علم میں ہے، یقیناً ہے، کہ جو کل کی بیٹھک تھی اس میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کو نہ دعوت دی گئی تھی اور نہ ہی وہ وہاں موجود تھے. ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ ہمیشہ حق کے خود ارادیت کی بات کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جموں اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے، مدعا ہے، اس کا مستقل اور دیرپا حل جو ہے وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں سے جڑا ہوا ہے اور کشمیریوں کی امنگوں کے عین مطابق ہونا چاہیے. وہ ان کا کل بھی موقف تھا اور آج بھی یہی ان کا موقف ہے. یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کل کی نشست سے پہلے 22 جون کو ایک اور نشست ہوئی تھی اور وہ کشمیری قیادت جو مدعو کی گئی تھی 24 کی نشست کے لیے، انہوں نے آپس میں ایک مشاورت کی مجلس منعقد کی تاکہ جب وہ بی جے پی سرکار سے ملاقات کریں تو اس ملاقات میں وہ ایک متفقہ جو ہے وہ لائحہ عمل جو ہے اس کو اپنا سکیں. چنانچہ انہوں نے وہ نشست کی اور اس نشست کے لیے اور جو ان کے جو مطالبات تھے ان کو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ایک بڑے طویل عرصے کے بعد وہ جو ہے ان کو بالمشافہہ اسے بیان کر سکے. ایک چیز جو بڑی واضح ہوئی کل کی نشست سے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ دلوں کی دوری ہے اور کشمیری دلی سے دور ہیں. یہ تو بات سامنے آ گئی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نشست سے دلوں کی دوری کو مٹانا چاہتا ہوں اور دلی کی دوری کو مٹانا چاہتا ہوں. تو اعتراف تھا. یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا پہلے کہ وہاں حالات معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں، سب نے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو کھلے دل سے قبول کیا ہے اور ان اقدامات سے جو ہے جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر کی صورتحال بے خوشگوار تبدیلی آئے گی. آج یہ جملے اس کی نفی کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو کہا گیا تھا، جن عزائم کا ذکر کیا گیا تھا، ان اقدامات کے اعلانات کے ساتھ وہ آج خاک میں مل گئے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میرا یہ تجزیہ ہے جو میں نے گفتگو سنی ہے، جو مجھے رپورٹ کیا گیا ہے اور جو میں نے مختلف لوگوں کے سٹیٹمنٹس جو میں نے سنے ہیں. اگر میں مختصراً اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو میں تو کہوں گا جو کل کی بیٹھک تھی وہ تھی گفتن نشستن برخاستن. نشست ہوئی، حاصل وصول کچھ نہ ہوا. میری نظر میں یہ ایک ناٹک تھا. اور ناٹک کیوں تھا؟ ناٹک اس لیے تھا کہ ایٹ بیسٹ اس کو آپ ایک پبلک ریلیشننگ ایکسرسائز تو کہہ سکتے ہیں، نکلا کچھ نہیں. ناٹک اس لیے تھا کہ پچھلے 2 سال کے
जो इक़दामात लिए गए और 2 साल में जो जम्मू और कश्मीर पर जबर और तसल्लुत मुसल्लत किया गया, उससे हिंदुस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है, उसकी जो साख है, वो बुरी तरह मुतासिर हुई। न सिर्फ हिंदुस्तान की साख मुतासिर हुई, मैं समझता हूं कि वजीर आजम मोदी की जो जाती जो शख्सियत है, उस पर भी बहुत से सवालिया निशान उठाए गए। तो उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए और उस इमेज को, अपने इंटरनेशनल इमेज को बहाल करने के लिए ये एक कोशिश की गई। अब देखिए, कहते रहे कि जनाब वहां तो हालात बिल्कुल मामूल की तरफ आ गए, और आपने देखा कि कुछ चुने हुए लोगों को भी वहां ले जाया गया। लेकिन जो वहां कश्मीरी कायदीन वहां गए, उन्होंने कहा क्या? उन्होंने मुत्तफिका यकजबा होकर 5 अगस्त के जो इक़दामात थे, उनके रिवर्सल का मुतालबा किया, यानी कि उनको मुस्तरद किया और कहा कि हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है। और जो गुफ्तगू सामने आई है, उससे ये बिल्कुल हम वाज़ेह तौर पर उसका ये हम तज्ज़िया कर सकते हैं कि वो मुकम्मल, जो कहते हैं ना, फुल फ्लेज्ड रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के ख्वाहिशमंद हैं, फुल फ्लेज्ड के ख्वाहिशमंद हैं। और उसका इआदा कल की नशिस्त से भी ये तासुर मिलता है। वो कह रहे हैं कि जो आपने गैर कानूनी और उनकी नजर में गैर आईनी इक़दामात किए, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और वो कह रहे हैं, और यहां तक भी बात आई, सुनने में भी आई है, उसका जिक्र भी हुआ, कि जो इक़दामात हैं वो चैलेंज हो चुके हैं, और इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन पड़ी है। 2 साल से वहां पिटीशन है। ये और बात है कि अभी तक सुनवाई नहीं हुई, उसका फैसला नहीं हुआ। वो मुतरस थे तो सुप्रीम कोर्ट गए। अगर उनने फराख दिली से, खुश दिली से 5 अगस्त के इक़दामात को कबूल किया होता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत महसूस ना करते। अब वाज़ेह ये दिखाई दे रहा है कि कल की नशिस्त और इन मुतालबात, जो रिवर्सल का मुतालबा उन्होंने किया, उस पर उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। ये कहा गया, हां, स्टेटहुड बहाल कर दिया जाएगा एट एन ऑपर्च्यून टाइम। ये बड़ी वेग बात है, मुबहिम सी बात है। व्हाट इज एन ऑपर्च्यून टाइम? 2 साल तो बीत गए। व्हाट इज एन ऑपर्च्यून टाइम? और यकीनन सवाल ज़हन में उठता है कि मजीद कितनी कश्मीरी जाने का नजराना पेश करना पड़ेगा इस फैसले पर नजरसानी का जो मुतालबा है, उसकी अहमियत जतलाने के लिए। बिल्कुल ये बात सामने आई कि वहां इस बात का जिक्र भी हुआ कि हमारा तो एतमाद जो है वो उठ गया है, और उस एतमाद को बहाल करने के लिए, और एतमाद वाहिद जो तरीका है एतमाद को बहाल करने का, वो है फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, ये कहा गया। और मैंने सुना, ये जुमला भी सुना, ये भी सामने आया कि तस्करा हुआ, जिक्र हुआ कि कश्मीरी बहुत गुस्से में है, नाला है, तकलीफ में है, कर्ब में है, और अपनी तज़हीक महसूस कर रहे हैं। उनका उनकी जो स्टेट थी,
जम्मू और कश्मीर की, उसको तो आपने डाउनग्रेड कर दिया टू ए यूनियन टेरिटरी। उसका उनको उनकी गुफ्तगू से ये लगता है कि यकीनन उसकी तकलीफ है और वो जुबन मौजूद है। फिर यहां तक बात भी सामने आती है उस नशिस्त से कि ये जो तासुर था कि वहां बहुत सरमायाकारी हो जाएगी और बहुत वहां खुशहाली आएगी, माशी तौर पर खुशहाली आएगी, हालात उसके बरक्स हैं। बरक्स इस तरह है कि मुतालबा किया गया कॉम्पनसेशन का कि जो 2 सालों में ताजरों का, दीगर तबकात का, किसानों का बाग उजड़ गए। आप देख रहे हैं कि पूरी उनकी कमाई का जरिया जो है वो टूरिज्म है। टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी की, बर्बाद हो गई। लोगों को बेपनाह माली नुकसान हुआ, ज़हनी अजियत के अलावा और जो इंसानी मुश्किलात हैं उसके अलावा जो उनको माली नुकसान हुआ उसका तस्करा हुआ। यहां तक एक साहब ने तो यहां तक कहा कि 50% से ज्यादा जो सनत है वो बंद पड़ी है मकबूजा कश्मीर में। तो ये कौन सा तासुर है कि वहां खुशहाली आएगी, और कहां खुशहाली आई है? बर्बादी आई है। अब एक और चीज जो बड़ी वाज़ेह के सामने आती है वो ये है कि 2 सालों का ये अरसा गुजरा है और इन 2 सालों में मुकम्मल मिलिट्री सीज बरकरार रही है। कयादत न सिर्फ टॉप की, सेकंड लेयर भी और थर्ड टियर भी कैद में है और चार्जेस भी फ्रेम नहीं किए गए। बहुत से लोगों को बंद किया हुआ है, कैद किया हुआ है, नजरबंद किया हुआ है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जारी हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बिल्कुल सलब हैं और जितने स्टेट टूल्स ऑफ ऑपरेशन हैं उनको बरूए कार लाया गया। लेकिन जो हैरानकुन और हौसला अफजा बात है वो ये है कि इसके बावजूद वो उनके अज़्म को तोड़ नहीं पाए और वो उनको जिसे कहते हैं ना सब्जुगेट नहीं कर पाए। ये बिल्कुल हमारी जो इंफॉर्मेशन है, मुसद्दका इत्तलात हैं, वो ये कह रही हैं। अब जो एपीसी बुलाई गई, गुफ्तगू तो हो गई, उस गुफ्तगू में मांगा क्या गया, डिमांड्स क्या थी? वो डिमांड कर रही हैं क्या? सियासी कैदियों की रिहाई। वो मुतालबा कर रहे हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स की बहाली। वो मुतालबा कर रहे हैं क्या? एंड टू एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। वो कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस के साथ जो चीजें मंसूब हैं आपके सामने हैं। वो मुतालबा क्या कर रहे हैं? रिवर्सल ऑफ इलीगल एंड यूनिलैटरल स्टेप्स। अब काबिल गौर बात जो है वो ये है कि ये कौन कह रहा है? पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये कश्मीरी कह रहे हैं। ये कश्मीरी कह रहे हैं और कश्मीरी कयादत का वो हिस्सा कह रहा है जो माजी में हुकूमतों का हिस्सा रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो मतलब दिल्ली के साथ उनके मरासिम रहे हैं। यानी कि मैं हुर्रियत की क़यादत की बात नहीं कर रहा, मैं उस लीडरशिप की बात कर रहा हूं जो दिल्ली की सरकार के साथ जिनका उठना बैठना, गुफ्तगू हुआ करती थी, नशिस्तें हुआ करती थीं, कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाते रहे। एलियनेशन का ये आलम है। मेरी नजर में कल की नशिस्त नाकाम थी।
बेसूद थी, बेमकसद थी, उससे कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। कश्मीरी मेरी नजर में आज भी तलाश में है अपने तशख़्ख़ुस की, आइडेंटिटी। वो मुतालबा करते हैं अपने ऑटोनमस स्टेटस का, खुद मुख्तारी का। वो तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और जो डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग है वो उसे ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर रहे। दे आर अनकंफर्टेबल विद दैट, दे प्रोटेस्टिंग ऑन दैट। वो प्रोटेक्शन चाहते हैं प्रॉपर्टी राइट्स की, मुलाजमतों के, जो उनके बच्चों का मुस्तकबिल है, जिनको तारीख दिखाई दे रहा है, उसके बारे में वो फिक्रमंद हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये सामने आई है और मेरा ये ख्याल था कि इसमें कल मीडिया के बहुत से दोस्तों ने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहता था कि पूरी मालूमात हासिल कर ली जाए और मालूमात हासिल करने के बाद आपके साथ नशिस्त की जाए। शुक्रिया। जी, ये फॉरेन मिनिस्टर साहब की अभी एक पार्लियामेंट्री कमिटमेंट भी है, बट वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस। हाँ, कर लें। इसकी वजह है कि आपके इल्म में है कि बजट सेशन जो है वो ऑन है और वोटिंग भी होनी है, मुझे जाना है। जी नवीन सर, आप भी और काफी एक्टिव हैं गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, और इसमें आप क्या समझते हैं सर, तुर्की काफी एक्टिव है गुज़िश्ता चंद माह के दौरान, कि आइंदा आने वाले जो सेटअप में जो क्या किरदार होगा अफगानिस्तान में, और काफी सूरत हाल बिगड़ रही है और एक ऐसी तहकीक की सामने आ रही है से सुनने में आ रहा है कि शायद कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोई यूएन फोर्स वगैरह की ऐसी तजवीज़ भी और आई है। तो क्या समझते हैं तुर्की का क्या किरदार होगा? सेंस से आपका तो पाकिस्तान हमेशा कहता चला रहा है कि इन्फ्लुएंस तालिबान के ऊपर है, मगर तालिबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो क्या समझते किस पे कंट्रोल नहीं है भाई? पाकिस्तान ये कहता चल रहा है कि इन्फ्लुएंस जो है तालिबान के ऊपर, मगर कंट्रोल नहीं है। तो तमाम सूरत हाल क्यों खराब हो रही है और इसको स्टेबल करने के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि दोहा मुज़ाकरात भी हुए, सब लगता है ये सवाल कम है, पूरा बयानिया है, मुकम्मल सवाल कीजिए। यूएन फोर्स का बता दीजिए कि एक तजवीज़ है कि यूएन फोर्स शायद वहाँ पर कोई आ सकती है अफगानिस्तान की सूरत हाल को करने के लिए, और तुर्की का क्या किरदार होगा आइंदा आने वाले समय में? आपके लंबे सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि यूएन फोर्स का अभी कोई प्रोग्राम हमारे इल्म में नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक तुर्की का ताल्लुक है, तुर्की आपको पता है कि वहां वो मौजूद था, कोलिशन फोर्सेस का हिस्सा रहा है। अब मुस्तकबिल में वो क्या रोल प्ले करते हैं, उनसे तकाजा क्या किया जा रहा है? एक शुनीद थी कि उनसे तकाजा किया जा रहा है कि जो काबुल का एयरपोर्ट है उस पे वो अपनी जिम्मेदारियां बरकरार रखें, क्योंकि वहाँ उसकी वो आमदोरफ्त के लिए जो है वो एक इम्पोर्टेंट जरिया है। लेकिन तुर्की ने इस पर अभी क्या फैसला किया है अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। अफगानिस्तान की हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है, तालिबान इसे किस नज़र से देखते हैं, अभी कहना कुछ कबलज़ वक्त है। जी मतीन साहब। Thank you, Foreign Minister. My question is again on demographic change in Indian Upper Kashmir. आपने कहा कि कश्मीरी अपना तशख़्ख़ुस मांग रहे हैं। पाकिस्तान में इस तशख़्ख़ुस को दिलाने के लिए अब तक क्या किया? और डेमोग्राफिक चेंज इज वेरी वेरी सीरियस है। आपने कहा कि ये यूएन रेजोल्यूशंस की वायलेशन है। कौन से ऐसे फोरम्स हैं जहां पर इस चीज को टेकअप किया जा सकता है इंटरनेशनली टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम taking further actions on demographic change? अर्जी है, one at a time. No, one at a time. सर प्लीज। अर्जी है कि देखिए, आपने सवाल किया डेमोग्राफिक चेंज का, यकीनन हमें उसकी फिक्र है
क्योंकि उसकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। अब हमने कहाँ उठाया है? हमने हर फोरम पर उठाया है। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे उठाया है, हमने सेक्रेटरी जनरल से उठाया है, हमने सलामती काउंसिल के सदर से उठाया है, हमने ज़बानी भी उठाया है, हमने इन राइटिंग उठाया है, अपने खतूत के ज़रिए उठाया है। हमारे जितने बायलैटरल इंटरेक्शंस होते हैं वज़ीर आज़म के हुए, मेरे फॉरेन मिनिस्टर लेवल के हुए, उनमें उठाया है। हमने जितने पार्लियामेंट्स के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ हमारी इंगेजमेंट होती है, हमने वहाँ उठाया है। आपका भला हो, हमने जो जिनीवा कन्वेंशन की वायलेशन है उस पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हम उसका तस्करा करते हैं, वहाँ उठाया है जी। मेरी अभी अंतालिया में यूरोपियन यूनियन के जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मुलाकात हुई, वहाँ उठाया है। तो जहाँ मौका मिलता है उसको हम उठाते हैं और उसकी अहमियत और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं जो कि सलामती काउंसिल की करारदादों से जुड़ी हुई हैं उसका तस्करा करते हैं। जी, राशिदा सियाल साहिबा। थैंक यू वेरी मच सर। राशिदा सियाल अब्बत से। फॉरेन मिनिस्टर साहब, सर एक्सीलेंसी ये फरमा दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दी है कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाता है तो न्यूक्लियर एसेट्स की जरूरत नहीं मिलेगी। सो आई वांट टू आस्क, इज देयर एनी चेंज ऑन आवर न्यूक्लियर पॉलिसी? थैंक यू। No. That's a very simple, answer to your question. नंबर 1, देखिए, पहले तो आप सोचिए, आप ज़हन में लाइए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह कहा कि हमारे कोई एग्रेसिव डिजाइन्स न थे न हैं। हम इस तरफ बढ़े क्यों? डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए, अपनी दिफा के लिए हमने ये कदम उठाया और मजबूरन उठाया। जब हम देखते हैं कि एक 7 गुना बड़ा हमसाया जी, जो कन्वेंशनल, जिसमें इतनी एसिमेट्री आ जाए, तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमने हमारी अपने दिफा के लिए ये हमारी अप्रोच है। पाकिस्तान तो इन एन आइडियल वर्ल्ड कौन नहीं चाहेगा कि एक न्यूक्लियर फ्री दुनिया हो। आपने देखा ना, रूस और अमेरिका के ज़माने में मुज़ाकरात होते रहे, पेशरफ्त होती है, कभी नहीं होती, लेकिन लोग एक है ना, दुनिया में मूवमेंट्स भी हैं, क्या कहते हैं उसको, CND है ना, CND मूवमेंट, ग्रीन मूवमेंट्स, कई दुनिया में करते रहते हैं। लेकिन जब फैसले होते हैं तो वो एक होलिस्टिक पिक्चर को सामने रख के किए जाते हैं। जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उसको देखा जाता है, जो आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स है उसको देखा जाता है, बैलेंस ऑफ फोर्स जो है उसको देखा जाता है। तो इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तान ने फैसले किए और करेगा। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम जो है उसके बारे में हमारा एक मौक़िफ़ है और वो कोई नया नहीं है। हम गाहे बगाहे उसका तस्करा करते रहे हैं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, मिसाइल रिस्ट्रेंट है, कन्वेंशनल बैलेंस है, ये सब आपके सामने है चीज़ें। तो आप जब उनका ये बयान देखते हैं तो उसको उस तनाजुर में देखें तो चीज़ें कंफ्यूज नहीं रहती। जी प्लीज। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बात की थी कि जब तक वापसी नहीं होती 5 अगस्त के मामला की इंडिया से बात नहीं हो सकती। कल कश्मीरी जो कल तक कठपुतली कहते थे, उन्होंने भी वही मुतालबा किया है। क्या समझते हैं कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटी के हवाले से बात की है? क्योंकि जो आपका मौक़िफ़ है वही कश्मीरी जो क़यादत बनाई गई थी उनका मौक़िफ़ है। देखिए, इस वक्त तो आप देखें ना कि जो 5 अगस्त 2019 के बीजेपी सरकार के इक़दामात हैं उस पर मोतरज़ हैं कश्मीरी एंड कश्मीरीज अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आज़ाद कश्मीरी हैं,
चाहे मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं, चाहे वो कश्मीरी हैं जो कल बैठक पे तशरीफ फरमा थे, चाहे वो कश्मीरी हैं जो हुर्रियत की क़यादत जिनको आप कहते हैं, जो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे जाने जाते हैं, तो उसके साथ साथ आप देखें पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो देखें तो उन इक़दामात को तो आज मतलब है तकरीबन सभी हल्के मुस्तरद कर चुके हैं और भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। लेकिन बाहर से तो चलो हो सकता है, लेकिन अंदर से आवाजें उठ रही हैं, तो उससे उनके इक़दामात की जो है ना अफादियत और अहमियत वो आपके सामने है। जी प्लीज लास्ट। Thank you, Foreign Minister Aisha Nazim, Voice of America. Most of the fighting in Afghanistan today is between the government forces and Taliban. You said in a recent interview to Global News that Taliban are not responsible for all the rise in violence. Does that mean you're saying the Afghan government is also responsible for some of the rise in violence? Ma'am, what I said was, yes, violence has risen. Yes, we are concerned about it. Yes, we've been advocating reduction in violence, leading to ceasefire. We've been stating that in our bilateral meetings, in our interaction with, even with the Taliban here in this very office when the political leadership came here, and I engaged with them not once, twice, thrice. This was a very this was the advocacy that we did. Now, it is generally Taliban are, put in one category, that they are sort of fanning violence. What I said was, and let me reiterate or qualify, that there are other elements over there that are equally responsible for this increase in violence. Who are they? Daesh, spoilers. And there are two categories of spoilers. There are spoilers within and there are spoilers from outside. And they are elements who do not want to see peace and stability in Afghanistan. We, as a government, as a state, are advocating, working for, facilitating peace and stability in Afghanistan. Anas. Thank you for question. Commissioner sir, आपने लास्ट वीक पॉइंट किया था हाई को कि जब वो यूएस जाए तो पाकिस्तान पर ब्लेम गेम ना करें, लेकिन कल रात को अहमद शुजा जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, अहमद शुजा अफगान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान इज फाइटिंग अलोंगसाइड द तालिबान एंड द ब्लेम गेम हैज ऑलरेडी बिगन व्हाइल दे आर लैंडेड इन द यूएस. अब से कुछ देर घंटे बाद प्रेसिडेंट गनी और अब्दुल्ला की प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग है. In the absence of President Biden and Prime Minister Khan's contact, do you not think such statements can be adverse to Pakistan's efforts for peace in Afghanistan? Thank you. First of all, Malik Saab, you must understand that the Americans are fully aware of the role Pakistan is playing in Afghanistan. Their focal person, Ambassador Zalmay Khalilzad, is on record having said the constructive, positive, engaging role Pakistan has played, the facilitating role Pakistan has played. There is a widespread acknowledgement of our role. Today, Pakistan is being viewed as part of the solution. We are not being viewed as part of the problem. And I say that having engaged with US congressmen, I am saying that having spoken to important people within the administration. I am saying that having spoken to foreign ministers within the European Union, the High Representative, and important countries of the region. Whether it's the Gulf countries, China, Russia, Iran, and the rest.
So they can say what they want to. The question is the world oblivious of our role? And can they be that naive? I don't think they are. जी प्लीज ये इधर बेटे सेकंड रो में खत्म. Sir, Madam from Witness News. The Taliban has recently gained considerable territory in Afghanistan. Do you think it would impact the ongoing peace talks between the government of Kabul and the Taliban in any way? What are we advocating? We are saying that a negotiated political settlement is in everybody's interest. That's the best way forward. Who needs to sit together? Afghans. Whether they are Taliban or members of the government. They need to sit together and take a decision about their future. What we have said is, we have no favorites. We do not want to meddle in your internal affairs. Whatever the outcome that evolves out of your negotiations, we will respect that. So our position is very clear. We will be partners in peace. We are engaging with Afghanistan, and we are engaging with all stakeholders, regional players, in the interest of peace and stability. Because we feel if there's peace and stability in Afghanistan, obviously the Afghans benefit. We benefit as well, because of the regional connectivity that, we will be able to attain. And God forbid, if things go wrong, and if Afghanistan is sucked back into the 90s, and God forbid, if there's a civil war, Afghans will suffer the most. We will suffer as well. And we can see the horrific consequences of that. We've paid a huge price. Pakistan has paid a huge price in economic terms and in human terms to cleanse our areas, to get rid of terrorism. It was a very concerted effort that we made nationally, built consensus, an action plan, operations, multi-pronged strategy, amalgamation, of erstwhile FATA into KPK. These are all steps that we've taken. So we would want to see peace and stability. Thank you. ये लास्ट अमजद साहब के साथ खड़े हैं बेटे. Sir, there is a very thin line which needs to be observed when you actually speak. हम जब 5 अगस्त के इक़दामात की वापसी की बात करते हैं, उससे तासुर ये मिलता है कि अगर हिंदुस्तान आर्टिकल 370 को मेरे से बाहर कर देता है, तो फिर हम हमारे लिए वो काबिल कबूल है, जबकि 370 के हवाले से पाकिस्तान भाईजान ये तासुर नहीं मिलता. जो इस चीज को समझते हैं, जो इस मसले को समझते हैं, कोई ऐसा तासुर नहीं है, कोई ऐसा एहबाम नहीं है, और आप बिल्कुल इत्मीनान से रहिए. आपको हरगिज घबराहट नहीं होनी चाहिए. हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, 2 टोक है. अब बिल्कुल इत्मीनान से रहिए. लास्ट क्वेश्चन उनसे ले दे दो ना. Yesterday, Mehbooba Mufti, former Chief Minister of Kashmir, congratulated Modi that you started backdoor diplomacy with Pakistan, which led to the normalization of situation on NOC. Sir, do you acknowledge any backdoor diplomacy with India right now? I am not sure if you said that. I am not sure. Perhaps she welcomed ceasefire, but I'm not sure if she said that. देखिए, backdoor diplomacy पे पहले भी हम अर्ज कर चुके हैं कि कोई इस वक्त बैकडोर चैनल, जिसको आप चैनल कहते हैं ना, वो नहीं है. और
पहले भी अर्ज कर चुका हूं, दोहरा देता हूं कि गाए बगाए खित्ते की सूरत हाल के बारे में कांटेक्ट होता है इंटेलिजेंस लेवल पे, बट कोई बैकडोर चैनल नहीं है। ये कई दफा अर्ज कर चुके हैं, लेकिन न जाने समझ क्यों नहीं आती। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि गुज़श्ता रोज़ की जो मुलाकात हुई है उसमें हुर्रियत क़यादत को दावत नहीं दी गई। ये गैर आइनी इक़दामात जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने उठाए वो किसी सूरत कश्मीरियों के लिए काबिल कबूल नहीं है। बुनियादी इंसानी हुकूक यहाँ पर सल्ब हो चुके हैं।